To realize the value of 1 year, to realize the value of 1 year, ask a student who has failed in one subject with 2 marks. To realize the value of 1 month, to realize the value of 1 month, ask a mother who delivered a baby prematurely. To realize the value of 1 week, to realize the value of 1 week, ask a newspaper editor who was waiting for a Sunday edition to be completed. To realize the value of 1 day, to realize the value of 1 day, ask the person who is born on 29th February. बोला एक दिन अगर आगे जाता तो हर साल मनाता. हालेलुया. समझ में आ रहा है ना? हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए नहीं? ओके ओके. To realize the value of 1 hour, right? To realize the value of 1 hour. सभी जवानों के लिए बोलता हूं. When a boyfriend is waiting for a girl and a girlfriend is waiting for a boyfriend, 1 hour is too much. Right? To realize the value of 1 minute, सभी मुंबई वालों के लिए 1 मिनट में लोकल चला गया. To realize the value of 1 minute, ask a person who missed the train. Right? To realize the value of 1 second, to realize the value of 1 second, ask the person who was driving and for 1 second he snapped his eyes and everything was over. Hallelujah. Amen. And to realize, khatam nahi hua abhi. And to realize the value of 1 millisecond, ask who got the silver medal in the Olympics. Amen. Hallelujah. So yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That is why it is called as a present. Hallelujah. Amen. So I believe God has given us the year 2025 as a gift to us. Right? And we thank God for every minute. I tell you, हमको लगता है कि 1 सेकेंड 1 मिनट में क्या होने वाला है. राइट? आपको नहीं पता आपने कितना खोया. हालेलुया. फिर से मत बोलना पास्टर टॉन्ट मार रहे. लेकिन फिर से कहता हूं, we being late to the church by 1 minute, we have lost a lot. Hallelujah. But 2025, let us decide, Lord, we value the time that you have given us. Hallelujah. मैं ये अभी जनरल बोला मैं, right? But if I can tell you through the view and the sight of God, I tell you, His time is much more valuable than we can ever understand. Hallelujah. Right? So, whatever good the Lord has put in my heart, शायद आज पूरा नहीं बोलूंगा, अभी नहीं पूरा नहीं बोलूंगा, इसके लिए आपको कल सवेरे आना पड़ेगा फिर से. राइट? लेकिन जो परमेश्वर ने डाला मेरे मन में, I will start with this. Maybe 15-20 minutes I'll take, that's all. Then we will disperse. Actually, it is a continuation of what
pastor was speaking, because I believe whenever the Spirit of God, जब भी पवित्र आत्मा चलाता है तो वो एक ही स्तर पर चलाता है. तो ये सब मुझे याद है. नवंबर 19th, इट वॉज नवंबर 19, बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, जब परमेश्वर एक हफ्ता भर मुझे 3-3:30 बजे उठाता था, कुछ बातें बताया, बहुत सी बातें बताया, कुछ नहीं, बहुत सी बातें बताया. सो पूरा दिसंबर का जो महीना था वो उसी रेवलेशन का डाउनलोड है. और जो कुछ भी परमेश्वर ने डाला है, बहुत से सारे चीज आज का भी और कल भी जो शेयर करूंगा वो भी जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग सा है. राइट. अगर 2025 में हम लोग खड़े होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर सीरियस होना जरूरी है. Amen. So I'll start with the first verse where it came as a warning. एक चेतावनी की तरह मुझे मिला. Ezekiel 14th chapter 14th verse. एजिकिया उसका 14वां अध्याय 14वां वचन. पता नहीं कितना मैं समझा सकता हूं. एजिकियल उसका 14वां अध्याय 14वां वचन 14 and 14. पढ़न में. यस, कंटिन्यू. यदि ऐसे अधर्मी देश में नूह, दानियल और अयूब जैसे धार्मिक व्यक्ति भी होते, वो अपने धार्मिकता के कारण सिर्फ अपने ही प्राण बचा सकते थे, दूसरों के नहीं. हालेलुया. Somebody for me in English. Though these three men, very specifically परमेश्वर एजिकियल को बता रहा है. The word of the Lord came to Ezekiel. He was, वो इस्राएल के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, बहुत सारी चीजें वो समझाने की कोशिश कर रहा था. उन सभी के बीच में एक वर्ष बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है. जब अगर पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आता है. राइट. तो एक वर्ष परमेश्वर ऐसे बीच में इंसर्ट करके ऐसे बोला, एजिकियल को बोला, जिस वातावरण है, द प्लेस हाउ इट इज, अगर इस वातावरण में, अगर इस परिस्थिति में 3 लोग, फर्स्ट नोहा, सेकेंड इज डैनियल एंड जोब. राइट. मैं बोला मोसेस, डेविड और नहीं लिया का नाम. राइट. इनके बारे में एक टेस्टिमनी देता है परमेश्वर और बोलता है ये धार्मिक लोग. आमेन. धार्मिक मतलब नॉट द ट्रेडिशन वन. राइट. ही इंग्लिश में एक वर्ड है राइचियस पीपल. राइट. राइचियस पीपल. They were not religious, they were not traditional, they were not cultural people, they were righteous people. Amen. Right. तो वो बोलता है अगर ये 3 लोग उस परिस्थिति में या फिर इस परिस्थिति में ये 3 लोग अगर रहते तो ये सिर्फ अपने आप को बचा सकते. हिंदी में मुझे बहुत अच्छा है आखिरी सेंटेंस. Because of their righteousness, they could have saved themselves. दूसरों के नहीं. हालेलुया. तो परमेश्वर मेरे से बात किया और बोला एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है आत्मिक स्तर में जहां एक व्यक्ति अगर बचना है तो अपनी आत्मा को खुद बचा सकता है. लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड टेल यू,
पास्टर कलीसिया को नहीं बचाएगा, पति पत्नी के कारण नहीं बचेगी, ना ही पत्नी पति के कारण बचेगा, बच्चे माँ बाप के कारण नहीं बचेंगे, ना ही माँ बाप बच्चों के कारण बचेंगे। हालेलुया। अगर खड़ा होना है तो सिर्फ खुद के लिए खड़ा होना है। मेरी धार्मिकता किसी और से नहीं आती है, मेरी धार्मिकता परमेश्वर से सिर्फ मेरे लिए आती। आई कैन नॉट इम्पार्ट राइचियसनेस। समझ में आ रहा है? आई कैन नॉट इम्पार्ट। मास्टर प्रेयर करो ना, मैं धर्मी बनूं, नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। खड़ा रहना है आपको तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हालेलुया। सिर्फ स्टार्ट किया हूं, ओके। नाउ आई विल कंटिन्यू विथ जॉन 11th चैप्टर, जो हमने 2 दिन से देखा, जो पास्टर ने बताया कि परमेश्वर की महिमा देखनी है तो पत्थर हटाना है। आमेन। 24 का पत्थर हट गया। हालेलुया। 25 में जा रहे हैं। हालेलुया। 25 में जा रहे हैं तो feel that and know that and believe that you are still 25. Hallelujah. Yes, let the zeal be there. वो zeal रहने दो, right? Okay. John 11th chapter हमने क्या पढ़ा था? 39 और 40, right? या एक बार वो पढ़ेंगे फिर मैं आगे जाता हूँ। हाँ हाँ ओके। आता त्याला दुर्गंध येत असेल, कारण त्याला 4 दिवस झाले आहेत. येशूने तिला म्हटले, तू विश्वास धरशील तर देवाचे गौरव पाहशील, असे मी तुला सांगितले नव्हते. If you believe, you will see the glory of God. Hallelujah. कई बार होता है हम लोग ये ऐसा क्या बोलते हैं, लाजरस जिंदा हो गया, राइट? हम लोग सोचते हैं दी एंड है ना, बाहर आ गया तो दी एंड, राइट? लेकिन आज थोड़ा आगे जाएंगे। रेडी? यस। गेट मी टू द 44th वर्स। हाँ, यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़ा रह के पहला इंस्ट्रक्शन दिया, पत्थर हटाओ। आमेन। क्या करने वाला था यीशु मसीह तो पत्थर हटा के? बोला मुर्दे को बाहर बुलाने वाला था। जो वचन मुर्दे को बाहर बुला सकता है, क्या वो वचन पत्थर नहीं हटा सकता? आमेन। जो वचन मुर्दे को बाहर बुलाने के लिए इंतजार कर रहा है बाहर ठहर के, मैं बोला वही वचन से तू बोल सकता था ना, पहले पत्थर हट जा, फिर बाद में लाजर तू बाहर आ जा। लेकिन पत्थर किसको बोला हटाने के लिए? कौन से लोग थे वहां पे? जो लाजर को गाड़े थे, राइट? They were the ones who buried him. अभी उनको ही बोल रहा है तुम पत्थर, तुम हटाओ पत्थर, तुमने लगाया ना, तुम हटाओ। सो नेचुरल रिएक्शन, मारता मेरी, बोले 4 दिन हो गए, बास आता है, ब्ला ब्ला, राइट? हो गया। बोला नहीं, पत्थर हटाओ। मैंने हटाऊंगा पत्थर, पत्थर तुमको हटाना है। जिंदा करने का काम मेरा, पत्थर तुमको हटाना है। हालेलुया। बोला आसान जो कर सकते हो वही करने को बोल रहा हूं, तुमको जिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जिंदा करने का मेरा काम है, तुम सिर्फ पत्थर हटाओ। नहीं परमेश्वर तू जिंदा कर रहा है ना, फिर पत्थर भी तू छटा। मैं ठहर के देखता हूं ना, पत्थर लेंगे, वीडियो लेंगे कैसा पत्थर हटा है, ऐसे तू हटा, पत्थर तू हटा। आमेन। नाउ यस, कंटिन्यू 44।
हाँ तेव्हा मृत झालेला तो ईसाव हाँ बाहेर आला. जो get me in English. No, I'm he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes. His face was covered with a napkin. एक मिनट नहीं, स्टॉप. इसराइल कोई गया? नहीं, मैं भी नहीं गया, राइट? लेकिन लाजर का टूम देखा मैंने. लाजर का टूम देखा. कैसा था वो? ऐसा लेवल था? नहीं. अगर जाएंगे ना तो नीचे कम से कम 7-8 स्टेप्स है. बहुत लोगों ने वीडियो डाला, ये गूगल पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, राइट? नीचे स्टेप्स है. फिर अंदर जाएंगे तो एक ऐसा एक खड्डा जैसा है, तो उसके अंदर उसको लिटाया था. एक आदमी तो अंदर लेट के फोटो का राइट. बोला डर मत, मरेगा तो भी जिएगा. राइट. लोग भी अजीब अजीब काटते. राइट. ओके, 4-5 स्टेप नीचे है. फिर लेफ्ट में गए तो एक खड्डा जैसा है, उसके ऊपर लिटाया गया उसको. उस टाइम का कस्टम, जो मर जाता है तो उसको ग्रेव क्लोथ्स में लपेटते. अभी लपेटते मतलब कैसा है? अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कहता है द डेड मैन केम आउट विथ हैंड्स एंड फीट बाउंड. क्या सोच आती है या फिर क्या इमेज आता है? यस, हालेलुया. चलने भी नहीं आएगा, दोनों हाथ बंधे हुए. अभी छोटे बच्चों को सुलाते ना, है ना, उठना नहीं बोल के इतना घट करके सुलाते, लेकिन उनको थोड़ा हो चला, हाथ पैर सब बाहर है. नाउन करता था ऐसे, कितना भी करो हाथ पैर बाकी सब. तो ऐसा वो बॉडी को पूरा लपेटते थे. लेकिन यहां पे कहता है वचन, जब यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा, वचन कहता है द डेड मैन केम आउट. तो मेरे मन में प्रश्न आया, मैं बोला कैसा बाहर आया? Was it like that? नहीं, मैं बोला अगर ऐसा भी आना है तो एटलीस्ट आंख तो खुला रहना चाहिए. वचन क्या लिखता है? His face was covered with a napkin. बोला स्टेप नहीं देखा, अभी मर के 4 दिन हो गए, भूल भी गया. अभी अंदर आते आते तो देखा नहीं उसने कैसा था कब्र, वापस जाने के लिए. क्योंकि अंदर मर के आया था वो. कौन से जगह में लिटाया वो भी नहीं मालूम, कैसा है, कहां कौन से केव जैसा है वो भी नहीं मालूम. लेकिन वचन कहता है जब यीशु मसीह ने कहा लाजर कम आउट, तो लाजर. नाउ टेल मी, हाउ डिड लाजर कम आउट? हम सब खुश हो जाते हैं, लाजर जिंदा हो गया, जिंदा हो गया. बट व्हेन यू wait and see and study, there are some things that the Holy Spirit has hidden there. Amen. तो नेचुरल लॉजिक बताओ मुझे, कैसा आया होगा? जंप मारने के लिए आंख भी चाहिए ब्रदर. अभी जाते जाते आपके दरवाजे के पास आपका आंख बंद करते देखेंगे. कितने स्टेप्स है बोलो मेरे को, जंप करके जाओ. ये नीचे उतरने का इजी है, ये चढ़ना है इसको. Shall I tell you something? जब यीशु मसीह ने आवाज दिया, इंग्लिश में एक वर्ड बोला मेरे को होली स्पिरिट. ही सेड इट इज अ जंप स्टार्ट. हालेलुया. अगर मैं कहूं
कि जब यीशु मसीह की आवाज सुना, वो आवाज उसको सीधा उठा के बाहर लाके खड़ा किया बस। आमीन, हालेलुया। हम सिर्फ लाजर जिंदा हुआ इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हमको ये भी देखना है जिसने बोला उसकी वचन में कितना ताकत है। हालेलुया। It was a total lifting up from one place and putting him out. क्या बोलते, एक ग्रेव में से निकाल के उसको जिंदा लोगों के बीच में खड़ा किया। मुर्दो क्या, व्हाट डू यू टेल, ग्रेव, कबर में से उठा के कहां रखा उसको, जिंदा लोगों के बीच में लाके खड़ा किया उसको। And the Holy Spirit said, to the people who will believe in 2025, जो विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, उसके वचनों पर, उसकी बातों पर, परमेश्वर कहता है तुम्हें उस कब्र में जैसी स्थिति है तुम्हारी, वहां से एक ऐसा जंप स्टार्ट दूंगा, लोग सोचेंगे ये बाहर कैसे आया। हालेलुया। चाहते हैं ऐसा पोजीशन? यस। आप सोचे भी नहीं, मैं आई टेल यू, अंडर दिस अनॉइंटिंग आई टेल यू, जो विश्वास करेंगे ना उनके लिए एक जंप स्टार्ट है, एक जंप स्टार्ट है। हालेलुया। है ना, क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल में गए जाएंगे ना तो कॉर्नर में जाके वो उड़ाता है, राइट, बिफोर यू डाइव देयर इज अ जंप फॉर यू। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जो विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक जंप स्टार्ट देने वाला हूं। हालेलुया, आमेन। ओके, खत्म नहीं हुआ, आगे पढ़ो उसको। हाँ, आई विल फिनिश। हाँ, जीसस सेड अनटू देम, जीसस सेड अनटू देम, फिर से देम कौन है? अब भी जिसने पत्थर निकाला, अब भी जिसने पत्थर निकाला। पहला वचन यीशु मसीह बोला पत्थर हटाओ, बोले बास आएगा यीशु मसीह। अभी उन्हीं लोगों को बोल रहा है पत्थर तो हटा दिए, मैं लाजर को बाहर लेके आया, अभी आगे क्या करना है? हालेलुया। उसके जो कब्र के कपड़े हैं उसको निकालो। बोला जो आदमी जिंदा कर सकता है कपड़े नहीं, वो निकाल नहीं सकता जो बांधे हुए। बॉन्डेज जो जिंदा किया, जो बंधा हुआ है उसको नहीं निकाल सकता। पहले बोला पत्थर हटाओ, अभी बोलता है कपड़े, उसके जो बांधा हुआ है वो कपड़ा निकालो। अनरैप हिम एंड लेट हिम गो, एक और वर्षन कहता है अनरैप हिम एंड लेट हिम गो, अनरैप हिम एंड लेट हिम गो। एक और साइड में बताता हूं। मैं ये सब जब सोच रहा था ना, मैं बोला मैं क्या हूं परमेश्वर? मैं लाजर हूं क्या? मैं पत्थर हूं क्या? मैं वो लोगों में हूं? व्हाट एम आई? अपने आप को कहां देखेंगे आप? मरा हुआ इंसान, या वो पत्थर, या फिर वो लोग जिनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है? ये तीनों भी लोग हैं, डिफरेंट कैटेगरीज। हालेलुया। उनको बोलता है इसके जो बांधे हुए हैं वो कपड़े निकाल और इसको जाने दे। परमेश्वर ने एक बात बोली, he said in 2025, स्पेशली हमारे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, सभी के लिए, आपके सामने ऐसे बंधे हुए लोग बहुत आएंगे और ये जवाबदारी परमेश्वर हमको दे रहा है।
unwrap them and let them go. Unwrap them and let them go. परमेश्वर उनको जिंदा तो किया है, लेकिन अभी भी बंधे हुए हैं. उनको निकालने का काम परमेश्वर ने हमको सौंपा है. Amen. And the Holy Spirit said, I'm going to give a great responsibility to the church. Hallelujah. कलीसिया के लिए एक बड़ी सी जवाबदारी मैं देने वाला हूं. अगर वो देखेगा, जवाबदारी देखेगा, अगर इसमें हम लोग उसको विश्वास योग्य रहेंगे, तो उसने कहा, you will set people free. हालेलुया. तुम क्या करोगे? लोगों को अनरैप करके उनको फ्रीडम दोगे. Amen. Want to be that person? हालेलुया. एटलीस्ट टेस्टिमनी बोलने के लिए रहता है, परमेश्वर ने जिसको जिंदा किया ना, उसको अनरैप मैंने किया था. मैंने जिंदा नहीं किया, जिंदा तो परमेश्वर करता है, लेकिन मैंने एटलीस्ट अनरैप किया था उसको. मैंने उसके बंधन निकाले थे, मैंने उसका हाथ पैर छुड़ाया. क्यों? वो जिंदा होने के बावजूद खुद को नहीं छुड़ा सकता. क्यों? बंधा हुआ है. हमको कई लोग लगते हैं ना, क्या हाँ वो उद्धार पाया हुआ है, आराम से है उसके. नहीं, there will be many people who will come across us who will be wrapped by so many things. परमेश्वर कहता है, get sensitive. वो काम मैं तुझे दे रहा हूं, मैंने कर रहा हूं. जिंदा करने का काम मेरा है, उनको उस बंधन से निकालने का काम तेरा. हालेलुया. अगर देखेंगे फिर बाद में जाके स्टडी करना उसके बारे में, तो कहते हैं जो रैप करते थे ना, छोटे छोटे टुकड़े, पूरा बॉडी भर के निकालने के लिए पेशेंस चाहिए. हालेलुया. निकालने के लिए पेशेंस चाहिए. शायद थोड़ा थोड़ा बास भी आता होगा, लेकिन निकालना हमको ही है. परमेश्वर हमको भेजने वाला है, हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है. Amen. The finally I will come, right? ये सब चीजों के लिए एक चाबी. I am coming to my point, right? एक चाबी. कौन बोला लाजर बाहर आ? It was the Son of God. Hallelujah. He is the Son of God. एक आखिरी वर्ष पढ़ेंगे हम लोग, मैथ्यू 16th chapter. Okay, read from 13 to 19. एक बार पढ़ के मैं खत्म करता हूं, फिर इसको कल डिटेल में देखेंगे. अगर और सीखना चाहते हैं, चाबियां चाहिए तुमको 25 क्या बोलते हैं 20-25 के लिए चाबियां चाहिए, ऐसी चाबियां जो परमेश्वर बोला, इफ माई पीपल विल, है ना. एक ओके, कल बोलता हूं, आज नहीं. राइट, रीड दैट फॉर मी. मैथ्यू 16:13 to 19. हाँ हाँ. अपने ही शिष्यों से पूछता है, हाँ, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं. हाँ, शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं तू यूहन्ना है जो बपतिस्मा देता था. हाँ, तू एक प्रोफेट है. ओके, तू यिर्मयाह है, या फिर कोई नबियों में से एक आदमी है. हाँ हाँ. लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? 2025 is going to be a challenge for every believer. God is going to ask, what do you believe that I am for you? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता. एक कहता है प्रॉफिट है, एक कहता है टीचर है, एक कहता है बहुत ही डिवोट आदमी है, एक कहता है सबसे बड़ा ह्यूमन बीइंग है. बहुत लोग बहुत सारे चीजें कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह 2025 में हमसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता है, और वो बोलता है, तेरे को अगर चाबी चाहिए, आई कॉल दिस द मास्टर की. आमेन. दिस इज द मास्टर की.
कल फिर बाकी की बोलता हूं, राइट? दिस इज द मास्टर की, राइट? वो बोलता है अगर मास्टर की चाहिए तो पहले मुझे ये बता, तू मेरे बारे में क्या बोलता है? तू मेरे बारे में क्या बोलता है? हालेलुया। एक बड़ा सा घर है, मैं बैठे बैठे गिन रहा था, हमारे घर में अगर हर रूम को चाबी डालेंगे तो कम से कम हमको 9 ताले चाहिए, राइट? अंदर डालेंगे पूरा हम लोग, लेकिन बाहर एक चाबी रहेगा। दरवाजा एक, दरवाजा एक ही है। पीछे से दरवाजे आने वाले सब चोर बोला है। मुझे ये मत बोलो पीछे से जाते हम, पीछे से जाने का ट्राई किया तो कुछ और है, लेकिन बोला दरवाजा एक है और उस दरवाजे पे एक चाबी है और वो है द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। जब ये विश्वास करेंगे, परमेश्वर बोलता है आई विल, द person who is going to acknowledge me as the son of God will unlock heaven in the coming years. Amen. एक ऐसा मास्टर की है कि जब एक यीशु मसीह मिल गया तुमको तो सब कुछ ओपन हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। चाबियां बहुत लेके घूम रहे हैं हम लोग, कौन सा चाबी कौन से घर को लगता, कौन से ताले को लगता नहीं मालूम, चाबियां तो बहुत है। क्या इतना प्रेयर करते, इतना वचन मालूम है, अरे बाबा कौन सा वचन कहां पे लगाना है वो मालूम है? एक चाबी लेके पूरा कॉलोनी ढूंढ रहे हैं कौन सा घर मेरा है। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर एक मास्टर की तुम जान जाओगे, द रेस्ट ऑफ द कीज विल फॉल इन इट्स प्लेस। हालेलुया। एक दर्शन दो परमेश्वर ने दिखाया, मैं कल बताऊंगा उसके बारे में डिटेल, बट टुडे आई एम गोइंग टू लीव यू विद द मास्टर की। आमीन। इस परमेश्वर के पुत्र को आप क्या कहते हैं आपके जीवन के लिए? पर्सनली, वेरी पर्सनल, दिस इज बहुत ही व्यक्तिगत है। मेरा पति क्या कहता है, मेरी पत्नी क्या कहती है, मेरे बच्चे क्या कहते हैं, मेरे पिताजी क्या कहते हैं? नो, व्हाट डू you say? Hallelujah. What do you say? Let us start the 2025 with a very personal question. Lord, exactly what are you in my life? Amen. Hallelujah. बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। मुझे इसको आंसर करने में कम से कम एक हफ्ता लग गया। I had to check myself. मैं कितना विश्वास करता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए क्या है? क्या सिर्फ आराधना करने वाली चीज एक व्यक्ति है, या फिर मुझे जब कुछ चाहिए मांगने वाला व्यक्ति है? नहीं, व्हाट इज ही टू मी? व्हाट एम आई टू यू? व्हाट एम आई टू यू? आमेन। आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू, मेडिटेट ऑन दैट। So we will meet tomorrow once again, right? And we are going to meditate on many things what the Lord has revealed to us. Hallelujah. आइए एक बार अपने आंखें बंद करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी। आइए खड़े हो जाएंगे।